Good evening, students. I am your Jaswinder Singh Sra. Once again with the discussion of algebraic identities of class 9th, chapter number 2, polynomials. Okay. In my previous video, we have discussed about algebraic identities, and a few of these identities we have discussed, and we have discussed three questions of exercise 2.5. Today we are going to start question number 4. In question number 4, we want to find out x plus 2y plus 4z whole square. Means we want to find out a whole square of three terms. Okay, for this there is identity number 5. Okay, yesterday we have written this identity. I told you to note down these all important identities. Okay, so now this is identity number 5. We are going to apply this. Okay, so how we can apply? Compare these terms with the x plus y plus z. On the place of x, here is x only. On the place of y, here is 2y. On the place of z, here is 4z. So it means x square means x square only. Y means 2y square. Okay, we have written there. And on the place of z, we will write 4z square. Okay, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है. ओके, x की जगह पर x है, y की जगह पर क्या है 2y, z की जगह पर क्या है 4z. ओके, उसके अकॉर्डिंग इन वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. x की जगह पर आ गया xy एंड y की जगह पर आ गया 2y एंड z की जगह पर क्या आ गया 4z. और इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे 2 इंटू एक्स एंड 2y प्लस 2 इंटू 2y 4z 2 इंटू एक्स एंड 4z. अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए. इट विल बी एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर एंड 2 इंटू 2 4xy 2 इंटू 2 इंटू 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8xz. तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया इसका प्रोडक्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट. अगेन कंपेयर विद दिस. ओके, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो इसमें से मैंने क्या किया, आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया, सेकेंड, थर्ड, ओके, फोर्थ एंड इसका जो है सिक्स्थ पार्ट वो आपने अपने आप ट्राई करना है. डू योर सेल्फ. ओके, वेरी इजी, अपने आप कर लोगे. तो मैं अब आपको करवा देता हूँ फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है, उसी तरह से कंपेयर करो. एक्स की जगह पर हमारा क्या आ गया -2x, वाई की जगह पर क्या आ गया +5y, जेड की जगह पर क्या आ गया आपका -3z. ओके, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, x मीन्स 2x स्क्वायर, y मीन्स 5y स्क्वायर, z means -3z square. Then 2 into, on the place of x 2x, on the place of y 5y, plus 2 into, on the place of y 5y, on the place of z -3z, plus on the place of x -2x, on the place of z -3z. Now solve it. 2 2 ja 4x square, 5 5 ja 25y square, 3 3 ja 9z square, because it is square power, so answer will be positive. Okay, so beta next is 2 2 ja 4 5 ja 20, answer will be negative because minus sign is there. Okay, so its answer is next solve this. 2 5 ja 10, 3 ja 30, it will be 30. Okay, here one term was left, xy 30 yz, then 2 2 ja 4 3 ja plus 12 because minus came 2 times. Okay, so its answer will be 12xz. Okay, so this is your answer. 4x square 25y square plus 9z square. This is -20xy minus 30yz plus 12xz. So it was fifth part of fourth question. Now move to next part. We are going to do fifth question. So in this we are want to do factorization. How we will do this is same, okay, identity there. So now we will apply it in a reverse direction. Reverse means we will compare this with its right side. Firstly we compared this with the left part because it was a whole square. Now we will compare this factors with the, we want to factorize this, then we will compare it with the right side. इसको हमने क्या करना है, राइट के साथ कंपेयर करना. अब वही कंपेयर करो. ये हमें चाहिए किसी नंबर का स्केयर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्केयर लिख सकते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y का स्केयर लिख सकते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4z का स्केयर लिख सकते हैं.
तो अब हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। 12 हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2x × 3y। तो ये तो यही टर्म आ जाएगी, 2 × 2x, पहला आ गया x वाला, दूसरा आ गया y वाला। ओके, फिर उसी तरह से 2 ये आ गया y वाला, ये आ जाएगा z वाला। उसी तरह से लास्ट में आ जाएगा 2 ये z वाला एंड x वाला। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने देखना कि यहाँ पर तो माइनस है भाई, पर हमारा आंसर है जो प्लस का आ रहा है। तो हमने देखना है कि इन दोनों में से कोई टर्म है वो नेगेटिव होगी। कौन सी नेगेटिव हो सकती है, अगर देखिए, अगर आपने ली टर्म वाई वाली नेगेटिव, तो जो भी आंसर जो है हमारा वो क्या चाहिए हमें, जे भी हमें नेगेटिव मिलेगा। अगर हमने ली एक्स वाली नेगेटिव, तो हमें क्या चाहिए भी, जे वाला भी हमें आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव मीन्स। ओके, सो आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वाई और जेड दोनों को नेगेटिव ले लो, ठीक है, अब वाई और एक्स दोनों को नेगेटिव ले लो, जहाँ आप अकेले जेड को नेगेटिव ले सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी वैल्यू है, इन तीनों में से जहाँ तो आप जेड को नेगेटिव ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक यहाँ पर माइनस होगा तो ये टर्म भी माइनस की हो जाएगी एंड जे वाली भी माइनस की हो जाएगी। और जब आप यहाँ पर माइनस लेंगे तो ये 4/4 का जो स्केयर होगा भाई अपने आप ही ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो जब आपने इस यहाँ तक तो आपने कर लिया, इसके बाद जो माइनस का ये वाला साइन हमें चाहिए, इसके लिए हमें एक टर्म नेगेटिव चाहिए। तो आप क्या करें, इनमें से तीनों वेरिएबल में से कोई एक को नेगेटिव ले लो, जेड को ले लो, क्योंकि जेड दोनों में आ रहा है तो नेगेटिव दोनों में ले लो इसको। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, -4z, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -4z, जहाँ भी आपने -4z ले लेना है। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा लिख लेते हैं हम इसको, 2x² 3y² प्लस -4z² प्लस 2x 3y प्लस 2 × 3y -4z प्लस 2 × -4z 2x। ये मैंने अच्छी तरह से इसको लिख दिया। अब इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, जहाँ पर आपका x, जहाँ पर आइडेंटिटी में x था, ये 5th आइडेंटिटी है, जहाँ पर इसमें x था वहाँ पर हमारा क्या है 2x, यहाँ पर y है वहाँ पर क्या है 3y, यहाँ पर z है वहाँ पर क्या है -4z। तो इसको अब हम प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा होल स्क्वायर 2x प्लस 3y -4z होल स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 2x प्लस 3y -4z होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, ये इसकी पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। तो ये आगे इसके दो फैक्टर आगे भी इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, कंपेयर करो इसको इस प्रॉपर्टी के साथ। ओके, प्रॉपर्टी को हम दोबारा लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, कोई आप यहाँ से कंपेयर कर ही सकते हैं, विजिबल है ना, हाँ देख लो अच्छे से, इसको कंपेयर कर लो भी। एक्स की जगह पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का, √2x²। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बाई, ये y का स्क्वायर हो जाएगा। z को हम 8 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 हमारा होता है √2 इंटू √2, ओके, इंटू 2 × 2। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बेटा 8 होता है 2 × 2 × 2। ओके, 2 तो हमारे पास ये हो गया। अब आप 2 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बेटा इक्वल टू होता है √2 × √2। ये आपने फैक्टर समझ लेना है कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर हो, रियल नंबर, तो उसको हम लिख सकते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट 2 टाइम्स। जैसे 2 हो गया, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2। तो हमारा था यहाँ पर 8 में कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 × 2 × 2, 2 बार तो जो 2 आ रहा था उसको हमने वैसे ही लिख लिया। तो एक 2 को हमने कैसे लिया, इसको हमने फर्दर फैक्टराइज कर दिया। तो इसमें अब देखिए जो 2 भी रिपीट हो रहा है, सिंपल 2 भी रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 का स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल 4। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 8। तो इसका मतलब हम 8 को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, 8 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 √2 z होल स्क्वायर। ओके बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही 8 आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे 2 × √2 है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 √2 के साथ, 2 × 2 तो क्या आ गया 4, √2 × √2 क्या आ जाएगा 2। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 8। इसको आपने समझ लेना है अच्छे से। तो x की जगह पर हमारा आ गया ये, y की जगह पर सिंपल y, z की जगह पर ये।
अब हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन भी है, उससे पहले इसको लिख लो प्लस लिख लो, +2 इंटू यही टर्म आ जाएगी √2, वाई की जगह पर वाई आ जाएगा, फिर +2 इंटू उसी तरह से वाई आ गया, जेड की जगह पर जे आ जाएगा 2 √2 जेड। एक लगेगी लास्ट वाली टर्म, इसको हम कैसे देखेंगे 2 इंटू वाई की जगह एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा √2x, जेड की जगह पर क्या आएगा 2 इंटू √2z। अब हमें इसमें एक टर्म नेगेटिव भी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो टर्म हमारी कॉमन होती है, जैसे कि जहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो आप x को क्या लो नेगेटिव ले लो, तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस। तो अब इसको हम एक बार फिर लिख लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे √2 माइनस √2x², इसको y² देगा 2 √2 z²। ओके, इसको हमने कैसे लिखना है -2 इंटू -2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई 2 √2 z, ये था हमारा z। ओके, ये लास्ट वाली टर्म को दोबारा फिर लिख लो 2 इंटू -2x 2 इंटू √2 z। ये हमने सभी टर्म्स को दोबारा लिख लिया। ओके, दो बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। अब इसको हमने इस फॉर्मूले में आइडेंटिटी में एक्सप्रेस करना है। आइडेंटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए आप करेंगे इसके साथ कंपेयर, तो यहाँ पर वही हमारा x है, वहाँ पर क्या है -√2x, और यहाँ पर हमारा y है, वहाँ पर y हुई है, जहाँ पर z है तो हमारा क्या है 2 √2z। तो इसको पुट कर लो इस फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2 √2z। तो ये किसका स्केयर बन गया -2 √-2 एंड x प्लस y प्लस 2 z होल स्केयर। तो इसको हम 2 टाइम्स रिपीट करना है, तो इसको रिपीट करने के लिए इसको दोबारा लिख लो भाई, इसी आंसर को दोबारा लिख लो, क्योंकि इसके दो फैक्टर बनेंगे। पहला क्या बन जाएगा हमारा, इसको दोबारा लिख लो, ये बन जाएगा -2x प्लस y प्लस 2 इंटू √2z। 2 टाइम्स लिखना है इसको, पहला एक बार ब्रैकेट लिख लिया, फिर जिस वाला ब्रैकेट है वो एक बार फिर लिख लो। ओके, तो ये आ गया आपके 2 फैक्टर, इसका आंसर आ गया। तो वही ये वाला ये था 5th पार्ट सेकंड। ओके, 5th सम का सेकंड पार्ट था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन का हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, अब करना है क्यूब। क्यूब के लिए आप आइडेंटिटी चेक करो भी, कौन सी आइडेंटिटी है वो जो क्यूब के लिए है। पहले हम आइडेंटिटी चीज़ को देखते हैं अच्छी तरह से, तो उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि क्यूब वाली आइडेंटिटी कौन सी है। ओके, इसमें देखो अब आइडेंटिटी नंबर जो 6 है उसको देखो, चेक करो, तो ये हमारी होगी x प्लस वाई होल स्केयर। इस आइडेंटिटी को हमने लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इसको लगाने के लिए पहले कंपेयर कर लो x की जगह पर क्या रहा है। ओके, जल्दी जल्दी इसको कंपेयर करो, तो हमारा x की जगह पर आ गया यहाँ पर भाई 3/2x। ओके, कंपेयर कर लो इसके साथ, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू किसके है x³ प्लस वाई क्यूब, मीन्स x की जगह पर हमारा आ जाएगा 3/2x, इसका क्यूब प्लस y की जगह पर आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 3/2x, y की जगह पर अगेन 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वही 3/2x प्लस 1। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसका क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब हो गया 27, 2 का क्यूब हो गया 8, x का क्यूब आ गया x³ प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो जाएगा 9/2x आउटसाइड ब्रैकेट में। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/2x। तो इसको वैसे ही लिख लो, क्योंकि अगली बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ फिर नेक्स्ट के साथ। तो इसको इक्वल टू पा के लिख लो। ओके, 27/8 x³ प्लस 1, इन टर्म्स को हमने वैसे ही लिखा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27/2 2 जा 4 x इंटू एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 9/2x। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला इसका आंसर हो गया। अगर आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन जिसकी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि फिर आपका आंसर बन जाएगा पहले x³ वाली टर्म आ गई, फिर उससे लेस वाली, फिर उससे लेस वाली। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह से लिख लो 27/8 x³ ओके प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जब भी
पावर्स को लिखते हैं तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। पहले ज़्यादा पावर वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब हमने अप्लाई करनी है अभी सेकंड आइडेंटिटी, क्योंकि पहली में तो था, देखो क्यूब हमने फाइंड आउट किया। क्यूब फाइंड आउट करने के लिए पहले तो पॉजिटिव सिंबल वाली आइडेंटिटी है, फिर दूसरी है नेगेटिव वाली। पहले हमने लगाई सिक्स्थ आइडेंटिटी यहाँ पर, और इसमें लगाएंगे अब हम सेवन्थ आइडेंटिटी। सेवन्थ में कंपेयर कर लो कि क्या कितना सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा सभी जगह पर। तो इसको कंपेयर कर लो भी, एक्स की जगह पर हमें क्या मिला, एक्स ही मिला, और वाई की जगह पर क्या मिला, 2/3 उसी तरह से पुट करो, एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स का क्यूब, फिर माइनस साइन, फिर वाई की जगह पर देख लो जहाँ पर क्या है 2/3 वाई क्यूब -3 इंटू एक्स की जगह पर हमारा क्या आ गया, फिर एक्स, वाई की जगह पर क्या आ गया 2/3 वाई। फिर उसी तरह से हमारे पास ये हमारा हो गया, वाई की जगह पर आपका ये आ जाएगा, एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स, एंड वाई की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2/3 वाई। इसको आप सॉल्व करो, ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब, ये बन जाएगा आपका 2 3 टाइम्स मीन्स 8, 3 की पावर 3 मीन्स 27, जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था, उसी तरह से इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, वाई क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6/3 आ जाएगा, 6/3 इंटू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा x -2/3 वाई। क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आउटसाइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इनर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड के साथ। तो इसी को वैसे ही लिख लो, एक्स क्यूब -8/27 वाई क्यूब, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2xy, x -2/3 वाई। क्योंकि बेटा इसको हमने सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई कर लिया, अब मल्टीप्लाई कर लो, पहली टर्म के साथ फिर दूसरी के साथ। एक्स क्यूब उसी तरह से लिख लिया, -8/27 भी उसी तरह से आ गया, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन को उसी तरह आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x² बाई -2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, 3 उसी तरह से डिनोमिनेटर में, x उसी तरह से आ जाएगा, y इंटू वाई क्या आ जाएगा y²। तो ये था भी आंसर सेकंड पार्ट का, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर था, ये दूसरे पार्ट का आंसर है। ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन के जो पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड हैं वो आपने खुद ब खुद ट्राई करने हैं, ट्राई योरसेल्फ। ओके बेटा, ये आपका है होमवर्क। अब हम सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन में आपने वही क्यूब वाली जो प्रॉपर्टी है वही लगानी है। मैं आपको इसको एक्सपेंड करके लिख के दे देता हूँ, करना आपने खुद ब खुद है। हम 99 को कैसे लिख सकते हैं, 99 को आप लिख सकते हैं 100 - 1। ओके, तो ये तो आपका हो गया 100 - 1 क्यूब, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 2 का क्यूब। ओके, उसी तरह से हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। हाँ, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर आपने क्या करना है, 99 को पहले आपने लिख लिया, जो क्यूब वाली आपने यहाँ पर लगानी है प्रॉपर्टी, इस पर लगा लेना अपने आप। इसमें भी आपने क्यूब वाली लगानी है, इसमें भी क्यूब वाली लगानी है। मैंने आपको लिखना बता दिया कि इसको कैसे लिखना है, और सॉल्व इसको आपने खुद ब खुद करना है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलिए आप, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इसको कंपेयर करना है। ओके, इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी है, वही क्यूब वाली आइडेंटिटी। क्यूब वाली आइडेंटिटी में इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं। इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, x³ वाई क्यूब प्लस 3x को जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x² वाई, और जब इसको आप वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा y²। ओके, x³ + y³ + 3x² वाई प्लस 3xy²। ये वही प्रॉपर्टी है जिसको मीन्स हमने फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट में, ठीक है। और नेगेटिव वाली को हम कैसे कर सकते हैं, उसी तरह से ये टर्म को ब्रैकेट वाली के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये आपका आ जाएगा x³ - y³, यहाँ पर आ जाएगा -3x² वाई, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3xy², ठीक है बेटा।
तो ये है हमारा राइट पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो इसके साथ आप कंपेयर कर लो इसको, ठीक है। कंपेयर मैं करना आपको बताता हूँ। पहले हमें चाहिए ये 8a को हमने किसी का क्यूब बनाना है, ठीक है। इसको किसका क्यूब लिख सकते हैं, 2a क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो जाएगा 8, ओके। x का अगर आप क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा, a का क्यूब करेंगे तो बन जाएगा a क्यूब, ठीक है। उसी तरह से b हम लिख सकते हैं b का क्यूब, और ये हमारा, ठीक है। उसके बाद इसको हमने क्या लिखना है, 2 इंटू ए बी, ठीक है। a हमने 2 टाइम्स लिखना है, क्योंकि a की जगह पर हमारा क्या है, 2a है। 2a मीन्स 2a स्क्वायर एंड b, ठीक है। इसको बेटा आपने अच्छी तरह से कंपेयर कर लेना है आइडेंटिटी के साथ। जब आप आइडेंटिटी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्लस 2 इंटू, फिर उसी तरह से आइडेंटिटी में क्या दे रखा है आपके पास, आइडेंटिटी में आपके पास दे रखा है इन्होंने 2 इंटू 2a b स्क्वायर। पहले तो a का स्क्वायर है इसमें, ओके। फिर उसके बाद क्या है, b का स्क्वायर है, ठीक है। a का स्क्वायर हो गया पहले, a की जगह पर हमारा क्या है 2a, और b की जगह पर हमारा सिंपल b है। तो जहाँ जहाँ a है मीन्स जहाँ जहाँ हमारा x है उसकी जगह पर हम ले लेंगे 2a, और जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ पर हम क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। इसको आपने पहले कंपेयर कर लेना है, ओके। कंपेयर करने के बाद आपको इसका जो सोल्यूशन है वो इजीली मिल जाएगी, ओके। इसको कंपेयर कर लो इसकी राइट साइड के साथ, राइट साइड के साथ ही मैंने कंपेयर किया। x की जगह पर आ गया 2a, y की जगह पर आ गया b, ओके। उसी तरह से यहाँ पर आ गया 3, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 3 आएगा, 3 x का स्क्वायर बाई मीन्स b, ओके। उसी तरह से यहाँ पर आएगा 3, x की जगह पर हमारा है 2a, और y की जगह पर हमारा क्या आ गया b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास बन जाएगा। वही कंपेयर कर लो तो आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा हमारा 2a प्लस b क्यूब, ओके। जब आप इसको ओपन करें तो आपको सेम टू सेम जो स्टेटमेंट वाली टर्म है वही मिलेगी। तो ये क्या होगा, इसका क्यूब मीन जिसको अब हमने 3 बार लिखना है, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। तो ये हो गया बेटा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये हमारा था पॉजिटिव वाला। अगर इसी में नेगेटिव वाला हो तो उसको हम कैसे करेंगे, 8th का हम एक पार्ट और चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन सा पार्ट करना है। अब 8th में इसका सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट हम करते हैं ट्राई, ओके। सेकंड पार्ट के लिए उसी तरह से कंपेयर कर लो इसको। कंपेयर कैसे करेंगे आप, जी आपके साथ 8 को हमने लिखना है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2a क्यूब, ओके। 8 को हम लिख सकते हैं 2a क्यूब, b को वैसे ही लिख लो b का क्यूब। उसी तरह से ये इसमें माइनस आ गया तो अब हमको पता है कि इसमें क्या आएगा, माइनस आ गया, -3 इंटू आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर लेना बेटा, माइनस वाले के साथ। ये देखो x की जगह पर हमारा 2a आ गया, y की जगह पर हमारा हो गया b, फिर उसी तरह से -3 x की जगह पर फिर आ जाएगा 2a का स्क्वायर, y की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा b, ओके। फिर वहाँ पर प्लस साइन 3 इंटू एक्स वाला वैसे ही 2a, y का स्क्वायर, y मीन b का स्क्वायर, ओके। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, जब आपके पास आ जाएगा 8 तो ये पहले तो बना ही रखा था, इसको हमने अब अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है, राइट से लेफ्ट बनाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई क्यूब। एक्स की जगह पर क्या है 2a माइनस वाई की जगह पर क्या है b, 2a माइनस b का क्यूब। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ओके। सेकंड एंड थर्ड आप खुद ब खुद ट्राई कर लो, फोर्थ भी खुद ब खुद, फिफ्थ भी, डू योरसेल्फ, ओके। ये पार्ट आपने अपने आप करने हैं, ओके। तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी आपने खुद ब खुद ट्राई करना है। अगर नहीं पता चला तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा दोबारा से। अब इसको हमने वेरीफाई करना है, ओके। ये भी आइडेंटिटी है, इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले लेफ़्ट साइड को और फिर राइट साइड को, ओके। दोनों को हम चेक कर लेंगे कि उसका आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह से लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड तो कोई आपका भाई x क्यूब एंड y क्यूब है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, उसी तरह से लिख लो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। राइट हैंड साइड को अगेन लिख लो। ओके, इन दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, सॉल्व करो इनको। पहले x के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर y के साथ इस पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अब अपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो पहले x के साथ, x इंटू ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, फिर y के साथ मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर थर्ड के साथ। उसी तरह से y को मल्टीप्लाई करो, पहले x के साथ ये हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस वाई क्यूब। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दोनों में आपके पास क्या बच गया, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। इधर लेफ्ट में भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है और राइट में भी आपके पास क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आगे आपके इक्वल। अगर आपके पास ये इक्वल आ गए तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड, तो ये आपका आंसर आ गया हैंस वेरीफाइड। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो साइड्स हैं भाई वो इक्वल हैं। इसका बी पार्ट आपने खुद ब खुद ट्राई करना है। इसके साथ ही सेम टू सेम लेफ्ट को ऐसे ही रख लो, राइट को आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। पहले एक्स के साथ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई के साथ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है इन दोनों को। इसको हमने क्या करना है, जो 9th क्वेश्चन है उसके साथ ही कंपेयर करना है, क्योंकि 9th में आपने पहले पढ़ा है कि अगर एक्स प्लस वाई का क्यूब हो तो ये इक्वल टू किसके होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ओके, सो ये वाली हमने जो रिजल्ट हैं दोनों यही लगा लेने हैं। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट रिजल्ट लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो सेकंड वाला लगाएंगे। इन दोनों को आपने याद रखना है। पहला रिजल्ट हो गया एंड जो ये दूसरा हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, हमने अभी वेरीफाई करा है। पहला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा आपने खुद ब खुद करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है। तो इसका मतलब इन रिजल्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। पहले को आप कंपेयर करो इसके साथ, 27 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 का, वाई 3 वाई क्यूब। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 जेड का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब हो गया 125 एंड जेड का क्यूब हमारा जेड ही होगा। ठीक है, जेड का क्यूब हो जाएगा। तो इसको अब हम कंपेयर करो भाई, एक्स की जगह पर आपका क्या आएगा, जहाँ से 3y एंड प्लस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा 5z, 3y 5z। देख लो, कंपेयर कर लो, यहाँ पर हमारा x था, वहाँ पर क्या है 3y, यहाँ पर y है, वहाँ पर क्या है 5z। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z स्क्वायर। ओके, ये आपने अच्छी तरह से इसको कंपेयर कर लेना है इसके साथ। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 3y प्लस 5z इन ब्रैकेट, देन ये आ जाएगा 9y स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 15yz, ये आपका आ जाएगा 25z स्क्वायर। तो ये था जब पॉजिटिव साइन हो। अगर आपके पास नेगेटिव हो तो नेगेटिव के लिए आपके पास ये वाला रिजल्ट है। उसी तरह से इसको अप्लाई कर लो। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4m क्यूब लिख सकते हैं। 64m क्यूब को इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7n क्यूब। उसी तरह से इसको इसमें पुट कर लो, x की जगह पर आ जाएगा 4m, y की जगह पर आ जाएगा अपना 7n। ओके, सो इसमें 4m स्क्वायर देन प्लस साइन 4m इंटू 7n प्लस 7n स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, 4m माइनस 7n, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 28mn, ये आ जाएगा आपका 49n स्क्वायर। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
तो अब तक हमने इन रिजल्ट को अप्लाई किया। पहले वाला रिजल्ट आपने ये याद रखना है भाई, लिख लेना अच्छी तरह से, इसको भी लिख लेना, क्योंकि 8 हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और ये दोनों रिजल्ट यूज़ करने इस एक्सरसाइज में। ओके, तो ये था 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।